Hello everyone, I am making this presentation for what is literacy and its importance in oracy. Why oracy is more important than literacy and numeracy put together. What is oracy? Basically, almost every living being like animals and birds and every other creatures have voice, but if they are not able to speak properly and meaningful, they don't have the oracy skills. Oracy means बोलने की कला. बोलने की कला मीन्स अगर आपके मन में कुछ विचार है, कुछ है जो आप सामने वाले को बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, तो आपके पास शब्द होने चाहिए या जेस्चर्स होने चाहिए, कुछ हो जिससे कि आप उसको कन्वे कर लें. बच्चों में जनरली होता है, उनके पास घर में जैसे जब स्कूल आते हैं तो दे हैव गॉट सम सेट ऑफ वर्ड्स इन देयर माइंड एंड साथ में उनके जेस्चर्स होते हैं, भागना कूदना ये सब, तो इससे वो अपनी फीलिंग अपनी बातों को हमें कन्वे करते हैं. तो oracy मीन्स आप कह सकते हैं कि एक डम पर्सन के पास भी oracy स्किल हो सकती है, बिकॉज oracy इज नथिंग टू just to transfer the information from one person to another. Like here, some of the famous orators are there. What are the ideal orators? So, first, I would like to ask you a question. Why wouldn't like to listen to a word I say? आपको मैं अगर कुछ बात कहूँ तो आप कब नहीं सुनना चाहेंगे? यस, जब आप मेरे पास रेलेवेंट टॉपिक ना हो जो आपसे संबंधित हो, या मेरी आवाज़ अच्छी ना हो, या आपके पास समय नहीं हो. तो सब चीज़ों का मतलब होता है कि oracy स्किल होते हुए भी मैं आपसे बात नहीं कर सकती. दूसरा सिचुएशन है everyone listens actively, people ask questions, people share relevant information, ideas may be challenged, reasons are given, contributions built on what has gone before, everyone is encouraged to contribute, ideas, opinions treated with respect, atmosphere of trust, sense of shared purpose, the group seeks agreement for joint decision. So एक सिचुएशन ये है कि जिसमें सब लोग, जो बोलने वाला है वो भी और जो सुनने वाले हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक सिचुएशन ये है जिसमें कि आप ही बोल रहे हो लेकिन आपकी बात कोई नहीं सुन सकता. तो ये कह सकती हूँ मैं कि इस सिचुएशन में oracy स्किल आपकी बहुत इम्प्रूव्ड है, और इस सिचुएशन में oracy स्किल आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो पीपल एक्सेप्ट एंड एग्री विद व्हाट अदर सेज, नॉलेज इज शेयर्ड बट इफ सेड इन अनक्रिटिकल वे. बोलने समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो शब्द कोई सुन रहा है उसके कैसा फीलिंग हो रहा है. अगर उसको अच्छा फीलिंग नहीं हुआ तो ना वो आपकी बात सुनेगा और ना आप जो मीनिंग उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो समझेगा. सो हमेशा अपनी oracy को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए. सो oracy इज स्पीकिंग what numeracy is to mathematics, literacy is to reading and writing. In short, it's nothing more than being able to express yourself well. It's about having the vocabulary to say what you want to say and the ability to structure your thoughts so that they make sense to others. Here I would like to point one point, bring your attention to this. Okay, why I had put some words in red color and why some are in black color. Actually, while reading, if you make these kinds of blocks in your text, the children will be able to easily comprehend the passage while reading it. In that case, you need not to tell them the translations of these lines. So here, as I will repeat it, so oracy is to speaking what numeracy is to mathematics, or literacy to reading and writing. So इस तरह से ब्लॉग बना के आप उनको समझा सकते हैं रीडिंग का तरीका भी. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे से कहना चाहती हूँ कि एक तरह से हमारे पास एक पॉइंट आ गया दिमाग में कि आपको oracy आनी चाहिए, आपको numeracy आनी चाहिए और आपको literacy आनी चाहिए अगर आप बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं. और यही तीनों पॉइंट
आपको बच्चे के अंदर हर स्टेज पे डेवलप करना है. नाउ to complement my talk, I would like to play this video for you. Why is oracy important? Consider this. Everyone has a voice, but not everyone knows how to use it. So, what is oracy? Consider this. It's nothing more than being able to express yourself well, but not everyone knows how to use it. Having the vocabulary to say what you want to say, सबके पास oracy का होता है. being able to structure your thoughts so that they make sense to others, and having the confidence to put your views across. Confidence होना चाहिए अपने views को across put And, just as importantly, being able to listen to others and understand their point of view. understand their point of view. Oracy affects all of us, every day. Being able to express yourself clearly and listen to others makes it easier to make friends and to sort out disagreements. We can explain और speed को भी थोड़ा सा आप इसको It makes it easier to get jobs and progress in your career. थोड़ा सा कम करके और थोड़ा specifically बात को समझ सकते हैं. To stand up for what you believe in. And it boosts your well-being. You don't need any special equipment, but if you want a helping hand, the English Speaking Union runs workshops. Being able to and having the confidence to put your views across. Yes. And, just as importantly, being able to listen to others and understand their point of view. Oracy affects all of us, every day. Being able to express yourself clearly and listen to others makes it easier to make friends and to sort out disagreements. It makes it easier to get jobs and progress in your career. और इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपकी oracy अच्छी है तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी. आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो आप पब्लिक स्पीकिंग में अपनी एक इम्पोर्टेंस बना पाएंगे और काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव स्पीकर बन सकते हैं. तो oracy स्किल बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए. To stand up for what you believe in. And it boosts your well-being. Confidence level boost हो जाता है अच्छे. You don't need any special equipment, but if you want a helping hand, the English Speaking Union runs workshops, competitions and more to help you. So, why is oracy important? See, all these pictures are there. They are having different size and shapes. Means कि oracy के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, आपके पास विचार होने चाहिए. सब कुछ होते हुए भी विचार नहीं हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. फिर उन विचारों को रिलेट करना आना चाहिए कि कैसे किसी सिचुएशन से आप अपने विचारों को बढ़िया से रिलेट कर सकते हैं. और लास्ट में आपके पास बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको जेस्चर्स होने चाहिए कि आप किसी को बात अगर कह रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी. तो इस तरह से ये जो कुछ पार्ट्स होते हैं और इसी को और इन्फ्लुएंस करते हैं. Simply because it helps you to be the best that you can be. So, Find out more. एक अच्छा ऑरेटर बनने के लिए आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए जिससे आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एलेबोरेटली समझा सकें. और आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए और आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. इस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए एक वीडियो देखते हैं जिसमें शिवानी जी अपने आप को कैसे 2 मिनट में काम कर सकते हैं उसकी एक टिप बता रहे हैं. See, this is also meditation. कि रिफ्लेक्ट करके, जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर के पास एक रोल है, एक स्क्रिप्ट है, एक डायलॉग है,
तो वो सीधा जाके परफॉर्म नहीं करते, पहले क्या करेंगे, उसका रिहर्सल करेंगे। तो रिहर्सल में वो पूरा देखेंगे ना कि ये सीन होगा, हम कैसे एक्ट करेंगे इसको। ये जो अभी हमने किया, ये भी इट मीन्स कि प्री प्लानिंग शुड बी देयर फॉर एनी और ऐसी टास्क। अब अगर हम टास्क लेके चले लाइफ में, जैसे अगर हम टीचिंग का भी टास्क लेके चलते हैं, तो कुछ भी करने से पहले और ऐसी की प्री प्लानिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स आप एक बार पहले सोच लें कि आप अपनी ड्यूटीज़ को कैसे इम्पार्ट करेंगे प्रैक्टिकली व्हेन द सिचुएशन कम्स टू यू। सो इस तरह से आप एक रिहर्सल है तैयारी कर सकते हैं कि सामने वाला गलती करेगा, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एक टिपिकल अगर आप चाहें तो संस्कार इस वीडियो होता को पूरा है देख सकते हैं। जिसको लेकर हम रोज ही एक बार इरिटेट हो जाते हैं। Now, different RSS skills in children to be inculcated are listening and response. वो बच्चा कोई बात ध्यान से सुने और उसको रिस्पॉन्स करे। पहली स्किल तो ये डेवलप करनी है। अगर ध्यान से सुनने के लिए और रिस्पॉन्स करने के लिए जो क्वालिटीज़ एक टीचर में होनी चाहिए, पहले तो कंपैशनेट होनी चाहिए टीचर। मतलब बच्चे को ये पता होगा कि यस, यहाँ पे मैडम जो भी बोलेंगी सही बोलेंगी और मुझे ध्यान से सुन के उनको जवाब देना है। गलत हो सही हो, इसमें बच्चे के दिल से ये डर निकाल देना है। बच्चे को सिर्फ इतना कहना है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और अपना आंसर दो। अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक कर दूंगी। दूसरी स्किल होती है रीजनिंग एंड एविडेंस। रीजनिंग मीन्स बच्चे को इतना लायक हमें बनाना है कि वो किसी भी चीज़ का कारण समझे और कारण बताने का हिम्मत रखे, और एविडेंस भी देना आए उसको कि यस, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस भी दे। एक्सप्रेशंस एंड डिलीवरी, ये भी स्किल होती है। और ऐसे में एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस तो हैं कि यस, मान लीजिए एक्सप्रेशंस क्या होता है, खुशी और गुस्सा, दो ही एक्सप्रेशन अगर हम मान लेके चलते हैं। अगर उसे खुशी जाहिर करनी है तो खुशी जाहिर करने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें, क्या बॉडी लैंग्वेज हो, क्या टोन हो, उसे डिलीवरी करना आना चाहिए। इसी तरह होता है नेक्स्ट स्किल होती है ऑर्डरिंग ऑफ थॉट्स। थॉट्स तो उसके पास बहुत सारे हैं, चलिए, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि पहले क्या कहना, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। तो उसको इस स्किल के अंतर्गत आप उसे सिखाएंगे कि कैसे अपनी थॉट्स को वो अरेंज करके अपनी बात को बहुत अच्छे मैनर में अच्छी तरह डिलीवर कर सकेगा, आपके साथ, पीयर्स ग्रुप के साथ, समाज में किसी के साथ, फैमिली में। तो ये भी स्किल हम ही को उन्हें सिखानी है। देन प्रायोरिटाइजेशन इन स्पीकिंग। स्पीकिंग में ये चीज़ हमें भी ध्यान देनी है और बच्चों को भी ध्यान देना है कि वोकैबुलरी भी है हमारे पास, टोन भी है, एक्सप्रेशंस भी हैं, दिमाग में सब कुछ सेट है, लेकिन कौन सी बात पहले कहेंगे और कौन सी बात सेकंड या थर्ड पोजीशन पे कहेंगे जिससे हमारी बात का इम्पैक्ट मैक्सिमम हो। तो ये स्किल भी हमको उनको सिखानी है। नाउ नेक्स्ट, एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। लिसनिंग और रिस्पॉन्स के लिए ये मैंने ग्रुप के लिए असाइन किया है, ग्रुप वर्क है। इसमें उनको ये दोनों जैसे करेंगे कि भाई कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, लिसनिंग और रिस्पॉन्स। यहाँ पे मेरा पास एक आइडिया है कि आस्क क्वेश्चंस अबाउट देयर फेवरेट टॉपिक। अब अगर हम किसी की फेवरेट बात को बोलना चाहेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी बात बीच बीच में कहना चाहेगा, क्योंकि टॉपिक उसके फेवरेट शौक का है, उस टॉपिक के बारे में वो बहुत कंफर्टेबल है, उसके पास पूरी नॉलेज है, तो बीच बीच में रिस्पॉन्स करेगा। तो ये वाला लिसनिंग करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा क्या है, रिपीट आफ्टर मी। ये दो एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं क्लास में। पहला तो क्वेश्चन करें कि उनकी किसी फेवरेट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो भी पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, हम आइडियल स्पीकिंग सिखाना चाहते हैं तो हम सेंटेंस बोलें और वो हमारे पीछे बोले। नाउ राइट, हाउ कैन यू डेवलप द ओरेसी स्किल इन योर स्टूडेंट? रीजनिंग एंड एविडेंस। अगर रीजनिंग और एविडेंस कैसे कर सकता है, तो उसके लिए आप आस्क वाई बेस्ड क्वेश्चन related to their knowledge, like okay, how did you come to school and why you have not done this thing। इस तरह के क्वेश्चन जब आप उससे पूछेंगे तो he will reply according to her or his convenient। Now write how can you develop this oracy skill in your student? Expressions and delivery। give live problem, लाइव प्रॉब्लम सिचुएशंस टू सॉल्व इट इन द क्लास। लाइव प्रॉब्लम सिचुएशन क्या हुई कि भाई
फॉर एग्जाम्पल जनरली जब क्लास में बच्चे घुसते हैं तो थोड़ा सा डेस्क बिखरे बिखरे से रहते हैं. सो वी विल आस्क, सपोज आज एक ग्रुप से पूछ लिया, कल दूसरे ग्रुप से पूछ लिया, हाउ विल यू अरेंज द क्लास. देन द चाइल्ड विल फर्स्ट टेल यू that how they will arrange, then that group will go and arrange the class. So this thing can be done in regular basis. Okay, on Monday this group will arrange the class, on Tuesday this group will arrange the class. So ये एक तरह से एक sense of responsibility भी सिखाई और आपने उसको आप ये सिखाने के लिए भी और ऐसे स्किल सिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं. Give keywords like I can, we should, I will, I may, I won't, I don't. ये कीवर्ड्स देने से क्या होता है, बच्चे को आसानी से बोलने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वो समझने लगता है कि आई कैन का कब इस्तेमाल करेगा, वी शुड का कब करेगा. राइट, हाउ कैन यू डेवलप ऑर्डर स्किल इन योर स्टूडेंट. ऑर्डरिंग ऑफ थॉट्स. ऑर्डरिंग ऑफ थॉट्स के लिए कैसे कर सकते हैं. टेक 5 स्टूडेंट्स, मेक देम टू डू एनीथिंग दे डू टू क्रिएट अ सीन. नाउ आस्क वन बाय वन इन ऑर्डर बाय गिविंग देयर नेम्स इन प्रॉपर ऑर्डर. 5 स्टूडेंट ले लिए, उनको अलग 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 बोला काम करने को और फिर उनको फ्री छोड़ दिया. ना यू कम एंड डू योर वर्क. वो आए और बच्चों को बोला ऑब्जर्व ध्यान से. उसके बाद हमने सिंपल ये पूछा कि पहली पोजीशन पे कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था. दूसरे से पूछा थर्ड पोजीशन पे कौन आया था, उसके बाद 4th पे कौन आया था, फिर 1 पे कौन आया था, 2 पे कौन आया था. इस तरह से क्या होगा, उनके माइंड में एक चीज़ सेट होगी, फर्स्ट कैसे 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 आंसर देना है. तो ये ऑर्डरिंग ऑफ थॉट्स पहले तो हमने इनको नाटक के फॉर्म में कराया, अब उनको बोला कि ऑर्डरिंग ऑफ थॉट्स इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में. नाउ दिस इज ग्रुप एक्टिविटी फॉर द पार्टिसिपेंट्स दैट यू हैव टू राइट हाउ कैन यूज डिफरेंट लिटरेसी स्किल डेवलपिंग और डिफरेंट RSA स्किल. सो दीज आर द RSA स्किल. You have to use different literacy skill and you have to plan some activity, and this you can show in 12 to 12:30 time slots. So that's all from my side. Thanks for participating. Neelam.